Hello students, good morning everyone. Today I am going to discuss about the characteristics of sound. There are many characteristics like the pitch, quality and timbre. Pitch or quality both are same. So quality, pitch and loudness. These are three characteristics of sound, and we will discuss about these three characteristics. After then we will discuss some other quality characteristics like the wavelength, frequency, time period and amplitude of the sound. So let's start and see the characteristics of the sound. So our first characteristic of sound is loudness. Loudness. What is the loudness? Suppose we hit a bell forcefully, then sound will produce very hard. And if we force the bell very slightly, then sound will produce soft. So if we force or we hit the any vibrating body forcefully, then the sound is called loud. And we hit the any sound producing object slightly or lightly, then it produces soft sound. So loudness means what is the amplitude of the sound? It's directly proportional to the amplitude of the sound. For the soft sound, suppose this is the wave form of the sound. This is the soft sound. And its amplitude is, this is called maximum displacement either side of the mean position is called amplitude. So this is the amplitude. But if we hit the same vibrating body forcefully, then this will like this. So what we see in this figure, the amplitude of the sound has been increased. ये increased कर गया amplitude. ये एम्पलीट्यूड यहां बढ़ गया. ये कैसा साउंड है? ये हार्ड साउंड. वो सॉफ्ट था, ये हार्ड. यानी इसको हमने क्या किया, जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी था उसको थोड़ा सा फोर्सली हमने हीट किया, तो कुछ इस तरह से इसका फिगर बना. और इसका मतलब जो लाउडनेस होते हैं वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. यानी अगर हम एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो वो लाउडनेस उसका कम. यानी हम एक बात और करते हैं, अगर किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को जोर से हीट करते हैं तो वो साउंड भी क्या करती है, उसकी ज्यादा एनर्जी होती है और वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करती है. लेकिन जैसे जैसे उससे सोर्स ऑफ साउंड से डिस्टेंसेस बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे क्या होता है, उसका एनर्जी भी यानी उसका लाउडनेस भी क्या होता है, कम होता जाता है. यानी एक फिक्स्ड पॉइंट पे जाने के बाद वो साउंड सुनाई नहीं देता है और उसकी एनर्जी जो है डिक्रीज कर जाती है और लाउडनेस जो है वो कम हो जाता है. तो इस तरह से ये लाउडनेस क्या है, loudness means it is the characteristic of the sound which is directly proportional to the amplitude, and how strong the sound is heard by the listener, that is called loudness.
Soft sound means low loudness, hard sound means high loudness, and it is also directly proportional to the amplitude of the sound. Loudness is directly proportional to the amplitude. You should remember this point. लाउडनेस जो होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है क्वालिटी। क्वालिटी और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टिम्बर। क्वालिटी एंड टिम्बर और टिम्बर। क्वालिटी क्या होता है? सपोज two musical instruments are played simultaneously or at the same time. Suppose in an orchestra, orchestra means when a group of musical instruments are played at the same time, then this is called orchestra. Orchestra means not like in this Bihar culture happens, not that orchestra. Orchestra means when two or more than two musical instruments are played at the same time, then the group of musics are called orchestra. तो ये जो ऑर्केस्ट्रा है इसमें दो चीजें एक साथ मान लेते हैं। एक हमने पियानो ले लिया और दूसरा जो है कोई दूसरा हारमोनियम ले सकते हैं या गिटार ले सकते हैं। गिटार, ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेम टाइम प्ले किए गए और ये दोनों ही साउंड हमारे कानों तक सेम स्पीड से दोनों साउंड हमारे कानों तक एयर के थ्रू पहुंच गई। ठीक है, लेकिन हम लोग इन दोनों साउंड में डिफरेंस कर पाते हैं कि एक जो साउंड है पियानो का है तो दूसरा गिटार का है। हो सकता है तीसरा इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम भी एक साथ बजाया जा रहा हो, तो वहां पे तीन तीन साउंड को हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं ये कौन सा साउंड किस इंस्ट्रूमेंट का है। तो इस प्रॉपर्टी को, साउंड की इस प्रॉपर्टी या इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटी और टिम्बर कहते हैं। क्वालिटी और टिम्बर इज द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड which enables us to distinguish the two or more than two different sounds. क्या होता है ये? It is the you can note down in your notebook. It is the characteristic of the sound which enables us to distinguish the two different sound of the same pitch and loudness। मतलब वो साउंड जो होगी ना हमारी, उसका भले ही लाउडनेस सेम हो, पिच सेम हो, लेकिन हम लोग उस जिस प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग उस साउंड की आवाज को पहचान पाते हैं कि कौन सा साउंड किस इंस्ट्रूमेंट का है या किसका है। घर में अगर है तो कौन सा साउंड मेरे मम्मी का है, कौन पापा का है, उस साउंड को जो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं उस क्वालिटी को ही या उस कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम लोग क्वालिटी और टिम्बर ऑफ द साउंड कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही सिंपल है और वो है पिच। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड है पिच।
PITCH, पिच। व्हाट इज पिच? पिच होता है, क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पिच क्या होता है? पिच होता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी differentiate between the soft sound and the hard sound. Soft sound means the softness और shrillness, यानी साउंड की जो कर्कशता या मधुरता, मधुर आवाज, स्वीट साउंड, जैसे कोयल और कौवे की आवाज है। तो इसमें कोयल की जो आवाज होती है वो मधुर होती है, किसके कंपैरिजन में? कौवे के कंपैरिजन में। तो जो कोयल की आवाज होगी उसको हम हाई पिच कहेंगे। जिसका साउंड सॉफ्ट होगा उसको हाई पिच कहते हैं, और जिसका कर्कश होगा, हार्श होगा, उसके साउंड को हम लोग क्या कहेंगे? लो पिच कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देते हैं, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बॉय एंड अ गर्ल। तो इसमें किसका हाई पिच होगा? लड़की की जो आवाज होती है वो सॉफ्ट होती है, लड़के की आवाज जो होती है थोड़ा लड़की के कंपैरिजन में हार्श होता है। तो द वॉइस ऑफ गर्ल हैज द हाई पिच देन द वॉइस ऑफ द बॉय। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा एक एग्जांपल बताते हैं, बजिंग ऑफ द मस्क्वीटो। कई बार बता चुके हैं बजिंग ऑफ द मस्क्वीटो, यानी कि जो हमारा मच्छर है, मधुमक्खी भी हो सकती है। बजिंग ऑफ मस्क्वीटो, मस्क्वीटो हैज हाई पिच, हाई, और वी कैन से हायर पिच देन द roaring of the lion, roaring of the lion, यानी कि जो शेर की दहाड़ होती है, शेर की दहाड़, उससे ज्यादा जो पिच होता है वो किसका होता है? मस्क्वीटो का। मस्क्वीटो की जो बजिंग होती है, भनभनाहट होती है, वो बहुत ही कम समय में कि क्या करता है, कई बार भनभना लेता है, यानी बज करता है। जबकि शेर जो होता है वो क्या करता है, एक दहाड़ लगाने में उसको बहुत टाइम लगता है। और ये पिच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मान लेते हैं जो मच्छर है वो 1 सेकेंड में या 1 मिनट में अगर ये 100 बार बजिंग करता है, भनभनाता है 100 टाइम्स, तो पता चलेगा कि जो शेर है वो 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 5 बार ही दहाड़ पाता है। ठीक है, तो जो पर सेकेंड जो वैल्यू निकलेगा, यानी 1 सेकेंड में इसको हम जब डिवाइड करेंगे 60 से, इसमें डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी वो होता है हाई पिच, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी वो होता है लो पिच। तो इसलिए जो बजिंग ऑफ द मस्क्वीटो है, इट हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी देन द रोअरिंग ऑफ द लायन, एंड देयरफॉर बजिंग ऑफ द मस्क्वीटो हैज हायर पिच देन द रोअरिंग ऑफ द लायन। तो ये पिच का मतलब हो गया क्या? द सॉफ्टनेस और श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड पिच। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, द सॉफ्टनेस और श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड पिच, एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक द वॉइस ऑफ द गर्ल्स एंड द वॉइस ऑफ द बॉय, in which the voice of the girl has the higher pitch than the boy. And similarly, buzzing of the mosquito का एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल दिया, the voice of the cuckoo और कोयल has the higher pitch than the voice of the crow. So these are the characteristics of the sounds. You can make a note and write in a notebook these 3 characteristics of the sound. And our next topic is about some other definitions like the amplitude and the frequency, time period. These are the some other definitions, and we will discuss about some numericals relating to
these topics. So amplitude क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तीनों में क्या रिलेशन होता है। ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग ये टॉपिक पढ़ें, एक बात कर लेते हैं फिर से। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम कंपलसरी है। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब हम मीडियम की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ साउंड से जब हमारे कानों तक ये साउंड पहुंचती है या किसी डेस्टिनेशन तक जब ये साउंड पहुंचती है तो क्या होता है कि ये जो मीडियम के पार्टिकल्स है इसको हम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स भी कहेंगे। तो ये जो है मीडियम के पार्टिकल्स, ये जैसे ही यहां सोर्स ऑफ साउंड से जब चलेंगी, यहां पर ये सोर्स ऑफ साउंड मान लेते हैं, ये हमारा सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड है। जैसे ही यहां पर ये वाइब्रेट करेगी, बॉडी जब वाइब्रेट करेगी साउंड प्रोड्यूस होगा। तो जैसे ये जो मीडियम के जो पार्टिकल्स है उसको ये सोर्स ऑफ साउंड जो है ना, सोर्स ऑफ साउंड ये क्या करेगा, इस मीडियम पार्टिकल्स को पुश करेगा, आगे की ओर पुश करेगा, ये आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये पुश करेंगे और पुश करने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अगले मॉलिक्यूल्स को पुश भी करेंगे और साथ में कंप्रेस भी करेंगे और फिर वो रिटर्न आएंगे। अभी तो ये क्या कर रहा है, इसको ये पुश कर रहे हैं और मीडियम पार्टिकल्स को, जैसे ही ये मीडियम पार्टिकल्स पास आ रहे हैं तो उसको कंप्रेस कर रहे हैं। यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ पे रीजन बनेगा। जो इतने दूर मॉलिक्यूल्स थे, ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास आ गए, ये पास आ गए। ठीक है, फिर यहां पर वो जब रिटर्न अपने वापस फिर पोजीशन पे आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका था कि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो केवल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। वो भले ही फॉरवर्ड थोड़ा सा मूव करते हैं लेकिन फिर वो वाइब्रेट करके अपने इस इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। तो अब क्या होगा, व्हेन मीडियम पार्टिकल्स कम बैक to its original position, then what happens? There will be rarefaction, that means लो प्रेशर रीजन। यहां लो प्रेशर बनेगा, मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, इधर तो अभी कंप्रेस किया था तो पास आ गए, लेकिन ये फिर जैसे ही दे विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट और ओरिजिनल पोजीशन, एंड व्हाट हैपेंस, देयर विल बी द लो pressure region, and this happens alternatively high pressure region and low pressure region when the medium particles moves from the source of sound to the listener। यानी जहां पे मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर रीजन क्रिएट किए वो कंप्रेशन कहलाता है, और जहां पर मॉलिक्यूल्स फिर जब अपने वापस पोजीशन पे आ गए तो ये रेयरफैक्शन हुआ, फिर यहाँ कंप्रेशन हुआ। तो इस तरह से ये जो मीडियम के पार्टिकल्स है ये क्या करते हैं, एयर में कहीं पे कंप्रेशन तो रेयरफैक्शन, फिर कहीं पे क्या होगा, कंप्रेशन यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आएंगे, हाई प्रेशर रीजन को क्रिएट करेंगे यहां पर। तो इस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में क्या होता है, कंप्रेशन,
रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन ऐसे बनता है। और इस तरह से ये जो है मीडियम के पार्टिकल्स हमारे क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो टू सक्सेसिव कंप्रेशन होता है उसके सेंटर से यानी उसके मिडिल से और इसके मिडिल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये वेवलेंथ कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन, और इसी तरह से जहां पे दो जो रेयरफैक्शन है सक्सेसिव या कंजिक्यूटिव, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, और एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, और इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। और इसका जो यूनिट होता है वेवलेंथ का, वो चूंकि हम लोग बात डिस्टेंस की कर रहे हैं तो इसका यूनिट होता है मीटर। वेवलेंथ का क्या डेफिनेशन हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव और कंजिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको भी आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब एक टर्म दिया है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, जैसे मैंने बताया कि जब कोई वाइब्रेटिंग बॉडी इस तरह से चलता है ऐसे, ये ट्रांसवर्स वेव के लिए होता है, तो ये मीन पोजीशन कहलाता है। ये कहलाता है मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शंस में या डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उस डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या हुआ, मीन पोजीशन से वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स का किसी भी साइड, या तो ऊपर या नीचे, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उस डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स आइदर साइड द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये इसका एम्पलीट्यूड है और इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी स्मॉल ए ही होगा, ठीक है। तो इसको ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अच्छा एक बात और हम बता दें कि ये जो मैक्सिमम इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। ये भी क्रेस्ट है, CREST, क्रेस्ट। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। ये ट्रफ है, यहां पर भी जो आएगा इधर, इसके बाद जो आएगा ये भी ट्रफ ही होगा, ये ट्रफ। तो क्या होता है, इसमें भी टू सक्सेसिव, ये ट्रांसवर्स वेव में होता है। जब हमने वेव्स की बात की थी तो वहां पर बताया था ये टू सक्सेसिव क्रेस्ट या टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको भी हम लोग वेवलेंथ ही कहते हैं। ये कब होता है, ट्रांसवर्स वेव में। तो हम लोग जो हमारा वेवलेंथ का जो डेफिनेशन था वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में उसको कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के बीच में, टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे, जबकि यहां पर ट्रांसवर्स वेव में टू सक्सेसिव क्रेस्ट या टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं the distance between two successive crests or troughs in the transverse wave is called wavelength, or the distance between two successive compressions or rarefactions in the longitudinal waves is called wavelength of the vibrating body. अब उसमें बात आती है कि वेवलेंथ तो हो गया, नेक्स्ट हमें आता है
स्पीड ऑफ द साउंड, और तब हम लोग फ्रीक्वेंसी और टाइम की बात करेंगे। तो ये स्पीड ऑफ द साउंड क्या होता है? स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड होता है कि ये जो हमारा साउंड प्रोपेगेट कर रहा है किसी मीडियम में, तो ये टू सक्सेसिव कंप्रेशंस या टू सक्सेसिव रेयरफेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने देर में तय करता है। ठीक है, हम लोगों ने स्पीड इक्वल टू क्या पढ़ा है? स्पीड इक्वल टू पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा है, यही पढ़ा है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहां पे थोड़ा सा डिफिनेशन क्या चेंज है कि जहां पर हम लोग यूनिट टाइम में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनी मूविंग बॉडी इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट बॉडी। तो वहां पे और यहां में अंतर ये है कि हम लोग जैसे वाइब्रेशंस पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसमें कहते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो यहां पे अगर 1 सेकेंड में, तो यहां पर भी तो हम लोग जब डिफिनेशन यहां दे रहे हैं तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल वही हुआ। तो यहां हम ये कह रहे हैं कि जो टू सक्सेसिव कंप्रेशंस या रेयरफेक्शंस या टू सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उसको हम लोग साउंड का स्पीड कहेंगे, और टू सक्सेसिव कंप्रेशंस या रेयरफेक्शंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 सेकेंड में जो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं या कंप्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस और कंप्रेशंस, वो होता है हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ टाइम की जगह हम उस टाइम को कैपिटल टी लिख देंगे, टाइम पीरियड को, और वेलोसिटी स्पीड को यहाँ से v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v इक्वल टू यहाँ पर लैम्डा बाई टी, ये हमारा रिलेशन होता है किसके किसके बीच में? स्पीड ऑफ साउंड, वेवलेंथ और टाइम पीरियड में। इसको हम फ्रीक्वेंसी में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का क्या डिफिनेशन बताया? फ्रीक्वेंसी का मैंने डिफिनेशन बताया, ये फ्रीक्वेंसी का द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। ध्यान रहे ये डिफिनेशंस, ये हमेशा काम आएगा 10, 12 या हायर क्लासेस में। इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, जो भी हमारा वाइब्रेटिंग बॉडी है 1 सेकेंड में जितना वो क्या करेगा, कंप्रेशंस और जितना ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस करेगा, उस ऑसिलेशंस को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसको हम कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू भी बना करके थोड़ा सा मोड़ देना है तो इसको न्यू पढ़ते हैं, कहीं कहीं एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब हम लोग, और इसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है? टाइम पीरियड का डिफिनेशन ये है कि 1 वाइब्रेशन करने में जितना टाइम टेक किया जाता है उसका टाइम पीरियड रहता है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट वाइब्रेटिंग बॉडी। तो यहां पर मतलब एक, जैसे एग्जांपल से समझाते हैं, इसे नहीं समझ आ रहा है, जैसे मान लेते हैं 50 ऑसिलेशन है या वाइब्रेशन है, ये 50 ऑसिलेशन है, 50 ऑसिलेशन, और इसको पूरा करने में मान लेते हैं 5 सेकेंड का टाइम लगता है। तो एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा? 5/50, इतना सेकेंड लग जाएगा। यानी 5/50 का मतलब हो गया 1/10, और 1/10 को हम 0.1 सेकेंड लिख सकते हैं, 0.1 सेकेंड। तो ये जो है 1 ऑसिलेशंस करने में जितना टाइम टेक किया जाएगा यही हमारा टाइम पीरियड है, यानी t इक्वल टू 0.1 सेकेंड आ गया। लेकिन अगर हम इसी को
टाइम को पहले लिख दें, ऑसिलेशंस को बाद में लिख दें। और अगर हमें निकालना होगा कि 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशंस हुआ तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो यहां पर 5 सेकेंड्स में वाइब्रेशंस है कितने, 50। तो 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे, 50/5, तो यह आ जाएगा 10। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो होंगे वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो यानी 10 हर्ट्ज जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, या 10 पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी हो गई, जबकि 0.1 इसका टाइम पीरियड हो गया। इन थोड़ा दोनों ही फिगर में थोड़ा सा मतलब ध्यान लेकर के देखो तो ये 5/50 लिखा है और 50/5 लिखा है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए इसमें रिलेशन बनता है F = 1/T का। यानी कहीं पर 1/T लिखा है, यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो इस रिलेशन में थोड़ा ध्यान देना कि यहां पर ये लैम्डा इनटू ये जो बाई टी लिखा है इसको हम 1/T भी लिख सकते हैं, और जैसे ही 1/T लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा न्यू, और ये V = न्यू लैम्डा या लैम्डा न्यू, V = न्यू लैम्डा। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, V = न्यू लैम्डा, जहां पे न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एम्पलीट्यूड जो होता है मीन पोजीशन से आइदर साइड का मतलब या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, या जो मीन पोजीशन होता है उससे बैक और फोर्थ, आगे या पीछे का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट मीटर होता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ में बता जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होता है उसमें बताया द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, व्हाइल इन द ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या बताया, फ्रीक्वेंसी बताया द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड frequency of the vibrating body, and it is denoted by F or nu, and the relation between frequency and time period is F = 1/T, and its unit is hertz। इसका यूनिट क्या होता है, hertz। जब पूरा लिखेंगे तो H स्मॉल में रहेगा, शॉर्ट में लिखना है तो H कैपिटल Z स्मॉल, hertz। या इसी चीज को हम लोग पर सेकेंड भी बोलते हैं, यानी सेकेंड की पावर -1। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है द नंबर ऑफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट वाइब्रेटिंग बॉडी। और इस तरह से हमने सबके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेगा, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे।